Hi guys, welcome to Manuver Education. In this video we are going to discuss the most important and expected question from the GK and current affairs section from the economics section for MSCAT Law 3 and 5 years 2025 examination. Further parts will be coming up, so stay tuned on this channel and do subscribe for important updates and do like and share this video so that those who are preparing for this examination also get benefits from this video. Let's get started. Before that, here is some important information regarding our classroom program, that is self-study program. So if you want to join us, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes, online classes on pan India level, and the counselor will guide you each and everything. In case if you want to join us through our website, so you can visit our website. I'll give you the tour of the website. So here you have to go to website manuveredu.com. Here you will see the law entrance examination. So go to law entrance examination. So go to the law 3 years, MSCT law 3 years. You will get each and everything about the live classes, सेल्फ स्टडी. यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी. सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, लाइव क्लासेस के सारे प्रोग्राम, MSCT लॉ 3 years 2025 क्रैश कोर्स, MSCT लॉ 3 years 2026 S2C लाइव कोर्सेज. सो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम का भी यहाँ पर आपको पूरा डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगा. दैट इज MSCT लॉ 3 years सेल्फ स्टडी कोर्स एंड MSCT लॉ 3 years 2026 प्रोग्राम जो है. हियर यू कैन गेट द सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, ई बुक्स. So each and everything you will get at the website, or you can go to the MSCT law 5 years. So here you will get the same thing about the MSCT law 5 year, that is MSCT law 5 years fast track batch, law 5 year 2026 S2C batch और क्रैश कोर्स जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा. और उसके बाद जो है आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो. लॉ 5 ईयर के लिए सेक्शनल कोर्स है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इच जो है सेक्शन के लिए. एंड मॉक टेस्ट इज़ ऑल्सो अवेलेबल. सो आप जो है बुक्स, ई बुक्स जो है वो भी आप यहाँ पर आकर साइट से जो है ये ले सकते हो. ऑल द डिटेल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया एज. तो इंडिया को जो है वो कैसी इकोनॉमी जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं? अ फूड डेफिसिट इकोनॉमी, अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, अ ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी. सो कैसा इकोनॉमी इंडिया है? सो the answer is a labor surplus economy. India is classified as a labor surplus economy because of its large population and with an unlimited number of workers willing to work at a subsistence base. तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत है और जो है जॉब कम है, जिसकी वजह से लेबर का जो है सरप्लस है, लेबर ज़्यादा है. डिमांड जो है वो आपको लेबर की डिमांड कम है लेकिन लेबर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है. सो इंडिया इज़ अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी एंड इट इज़ ऑल्सो अ डेवलपिंग इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज that the per capita income in India was Rs20 in 1867-68 was ascertained for the first time by. तो पहली बार जो है PCI that is per capita income जो है ये किसने जो है मेज़र किया था कि इंडिया का जो है 20 रुपीज़ है और ये आपको 1867-68 के राउंड जो है ये मेज़र किया गया था. तो हु मेजर दिस पर कैपिटा इनकम? MG राणा डे, W हंटर, RC दत्ता, दादा भाई नेहरूजी. एंड द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नेहरूजी. So Dadabhai Nehruji was the first to estimate national income in 1867-68. According to his estimate, the per capita income of India was Rs20 at that time, and he wrote a book that is British Poverty and Un-British Policy. जो है ये बुक किसकी है? तो ये जो है आपको दादा भाई नेहरूजी की बुक है. इसमें इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है दैट इज़ अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ. जो है ये थ्योरी जो है आपको दादा भाई नेहरूजी ने दिया है. तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले PCI जो है पर कैपिटा इनकम किसने एस्टिमेट किया था? सो दैट इज दादा भाई नेहरूजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज. तो अभी करंट में भी और सबसे पहले जो है इसी ने सिल्क भी प्रोड्यूस किया था. सो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जापान. एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना. So India is the second largest producer of silk after China in the world, and China is the जो फर्स्ट कंट्री टू प्रोड्यूस द सिल्क इन द वर्ल्ड. यहीं से जो है सारी दुनिया में सिल्क गया था. ये जो इंडिया का रूट था चाइना से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक, इसको कहते थे सिल्क रूट भी कहलाता था. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ. तो येलो रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन जो है आपको देखने को मिलेगा. तो फ्लोरिकल्चर, फिश कल्चर, वीट प्रोडक्शन, रेप सीड मस्टर्ड प्रोडक्शन. एंड द येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू रेप सीड, मस्टर्ड
प्रोडक्शन यानी ऑयल सीड्स जो है, ऑयल सीड्स, उससे आपको पल्सेस, ये सब क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द येलो रेवोल्यूशन, is related to oil seed production, and this revolution started in 1986 with the launching of technology mission on oil seed by the Indian Council of Agriculture Research जो है ICAR, उसने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च किया था। अगर फिश की बात करते हैं तो एक्वा कल्चर जो है उसके लिए कौन सा है, तो ब्लू रेवोल्यूशन है। एंड फॉर व्हीट प्रोडक्शन दैट इज सीरियल्स के लिए, क्रॉप्स के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड फॉर द मिल्क दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन जो है ये मिल्क के लिए है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर के लिए था। सिल्वर रेवोल्यूशन आपको जो है दैट इज फॉर द ये जो बॉयलर है, चिकन है, एग्स है, इन सब के लिए जो है सिल्वर रेवोल्यूशन था। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड ऑफिस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, न्यू दिल्ली। एंड द करेक्ट आंसर इज लखनऊ। सो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेट अप ऑन 2nd of April 1990 under an act of parliament, acts as the principal financial institution for promotion, financing and development of the micro, small and medium enterprises। MSME सेक्टर के लिए जो है ये वर्क करती है, इसको जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और सिडबी जो है, और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दैट इज इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज अनाउंस्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो LPG रिफॉर्म है, आपको 1991-92 में जो है ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड एट दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी। एंड द करेक्ट आंसर इज नरसिम्हा राव। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज डिक्लेयर्ड बाय द then Indian Prime Minister PV Narasimha Rao in 1991 and who was the finance minister at that time, तो ये थे आपको मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है आपको फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम टैक्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इनकम टैक्स जो है दैट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड दैट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स इन इंडिया, दैट इज ऑन द इनकम, जो इनकम पे आपके टैक्स लगता है दैट इज द इनकम टैक्स। तो ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकुले, जेम्स विल्सन, विलियम जोन्स। एंड द करेक्ट आंसर इज जेम्स विल्सन। सो द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1860 बाय जेम्स विल्सन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन। तो फाइनेंस कमीशन की बात जो है वो कौन से आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और अभी जो है वो चल रहा है, दैट इज द 16th फाइनेंस कमीशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। एंड अरविंद पंगरिया इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। एंड ये किस आर्टिकल में मेंशन है, 5 ईयर्स के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 280, आर्टिकल 269, आर्टिकल 268, आर्टिकल 265। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 280। So the Finance Commission is constituted by the President under 280 of the Constitution at every 5th year or at such earlier time as he consider necessary। तो जब भी ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन जो है कब सेटअप किया गया था, प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप फॉर द प्लान टू, ये जो है प्लान स्ट्रेटजी बनाने के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये कब सेटअप हुआ था, 1950, 47, 1948, 1951। एंड द करेक्ट आंसर इज 1950। सो द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन बाय कैबिनेट रेजोल्यूशन इन मार्च 1950 एज एन एडवाइजरी बॉडी। और ये प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होते थे दैट वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, जो है नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब नीति आयोग आ गया है प्लानिंग कमीशन की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, तो ये नीति आयोग कब आया प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जून 2015। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 जनवरी 2015। सो प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप ऑन 15th March 1950 और वी हैव ऑलरेडी सीन दैट थ्रू अ कैबिनेट रेजोल्यूशन एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग थ्रू another such resolution on 1st of January 2015। और ये नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सो टोटल जो है 12 5 ईयर प्लान आया
और उसमें जो पहला 5 ईयर प्लान था उसकी प्रायोरिटी क्या थी, किस प्रायोरिटी पे वो बेस्ड था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बिटवीन 1951 to 56, और ये किस मॉडल पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन हेराल्ड-डोमर मॉडल। और इसका जो ये क्या था, गोल क्या था, एम क्या था? सो फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को डेवलप करना, और सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर को मोस्टली जो है ये इसने फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स ऑफ द कंट्री इन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 14 बैंक को नेशनलाइज किया था इस वक्त, और ये किस टाइम में जो है 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था? दैट इज इन जुलाई 1969, 71 अगस्त, मार्च 1981, जुलाई 1991, एंड द करेक्ट आंसर इज जुलाई 1969. So on July 19, 1969, the government of India had nationalized 14 major private commercial banks whose asset size was above 50 crore जो है उन सबको जो है नेशनलाइज कर दिया था। एंड एट दैट टाइम इंदिरा गांधी was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रेगुलेट्स द रेपो रेट। तो रेपो रेट को जो है रेगुलेट कौन करते हैं, किसको कौन जो है रेपो रेट आपको आता है, किसके अंडर आता है? मॉनेटरी पॉलिसी है दिस इज द। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, म्यूचुअल फंड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। परचेज ऑप्शन दैट इज रेपो रेट एंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो रेपो रेट क्या होता है? जो बैंक आपको रिजर्व बैंक से लोन लेती है उस पर जो चार्ज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, दैट इज रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट वाज सेटअप इन द ईयर। तो नबार्ड जो है आपको कब जो है वो सेटअप किया गया था? नबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1992, 1982, 1962, 1952, एंड द करेक्ट आंसर इज 1982. सो नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 6th 5 ईयर प्लान इन जुलाई 1982, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैक्स इज लेवाइड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटाइटल्स इन इंडिया। तो कौन सा टैक्स जो है जो एनुअल इनकम पे लेवाई किया जाता है एक इंडिविजुअल के? तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, एंड द करेक्ट आंसर इज इनकम टैक्स। पेड बाय इंडिविजुअल एंटाइटीज डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ अर्निंग और गेन्स, एंड इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। तो अभी जो है आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर जो बजट आया है उसमें 12 लाख तक जो है आपको टैक्स जो है एग्जम्पशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन। तो रिजर्व बैंक जो है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? अप्रैल 1, 1932, जुलाई 12, 1982, मई 26, 2006, सितंबर 30, 2005, एंड द करेक्ट आंसर इज 1st of April 1935. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935 बाय RBI एक्ट, और जो 1935 में एक्ट आया था उसके थ्रू रॉयल कमीशन एक्ट के थ्रू ये RBI एस्टैब्लिश हुआ। उस टाइम में जो है इसका नाम आपको सेंट्रल बैंक था, और अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में जो है इसको नेशनलाइज किया गया, और तब से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। फर्स्ट जो इसके ये थे गवर्नर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर? ऑसबॉर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ RBI। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। एंड हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ RBI? तो संजय मल्होत्रा जो है अभी करंट में गवर्नर है RBI के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एबोलिशन वाज गिवन इन विच 5 ईयर प्लान। तो पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये जो नारा है ये किस 5 ईयर प्लान का जो है ये स्लोगन था? 4th प्लान, 5th प्लान, 2nd प्लान, 6th प्लान, एंड द करेक्ट आंसर इज 5th प्लान. So the slogan of poverty abolition was given by Indira Gandhi in 1971 and it was implemented during the 5th 5 year plan 1974 से 79 के बीच में जो है आपको ये इंप्लीमेंट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक रेट इज दैट रेट ऑन विच. तो अभी हमने देखा रेपो रेट और बैंक रेट. तो ये बैंक रेट क्या होता है? सेम टू सेम रेपो रेट के ही जैसा होता है. तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक्स गिव्स लोन्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनी बैंक लेंड्स मनी टू एन इंडिविजुअल, and State Bank of India gives loans to the rural bank. And the correct answer is Central Bank of country lends money to the commercial bank. So bank rate, also referred to as the discount rate, is the rate of interest that the central bank charges on the loans and advances of a commercial bank. So that is the bank rate. Next question is when was the Mumbai Stock Exchange set up? This is the oldest stock exchange of India. और ये कब सेटअप किया गया था? 1900, 1947, 1857, 1875.
and the correct answer is 1875. So the Mumbai Stock Exchange, also known as Bombay Stock Exchange, established in 1875 में जो है इसका establishment हुआ था BSE का. Next question is who is the father of economics? तो economics के father जो है वो किसको कहा जाता है? मैक्स मुलर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, none of the above, and the correct answer is Adam Smith. So Adam Smith is considered as the father of the economics, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन, विच ही पब्लिश्ड इन 1776, एंड इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है आपको कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था गवर्नमेंट को जो है मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेज़े फेयर का जो है कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, दैट इज इनविजिबल हैंड, मार्केट विल इनविजिबल हैंड विल कंट्रोल द मार्केट, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? तो सबसे ज्यादा बार जो है यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया है? पी चिदम्बरम, आर के शांकमुकम शेट्टी, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई, एंड द करेक्ट आंसर इज मोरारजी देसाई. द मोस्ट नंबर ऑफ बजट वाज प्रेजेंटेड बाय फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई, एंड इन्होंने कितनी बार प्रेजेंट किया? टोटल 10 टाइम्स जो है इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया, 10 टाइम्स. सो मोरारजी देसाई जो है वो पहले पर्सन थे. बजट जो है कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है दैट इज इन आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इसमें से इंडियन इकोनॉमी में जो है प्राइमरी सेक्टर के अंडर कौन सा आता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव, नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चर. सो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, फिशिंग, माइनिंग, इटीसी. ये सारी चीज क्या है? प्राइमरी सेक्टर का है, दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है ये पार्ट है. सेकेंडरी सेक्टर किसके अंडर में आता है? दैट इज इन द आपको इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो सेकेंडरी के अंदर आता है. सर्विस सेक्टर जो है वो आपको सर्विस सेक्टर है, जो भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड होता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नेशनल लेवल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? सो 2011 सेंसस जो हुआ था उसमें उसके अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो है कितने लोग रहते हैं? सो 326, 367, 382, 398 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. तो ये कितना है? तो एंड द करेक्ट आंसर इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. और ये जो है आपको इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था? 17.72% जो है ग्रोथ रेट इंडिया का था. मतलब कि इतना पॉपुलेशन जो है 2001 से लेकर 2011 के बीच में बढ़ा है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की थी? दैट इज बिहार, और कितनी थी? 1106 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी थी. इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन के कितना था? 17.5% जो है आपको ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन विच? तो क्लोज्ड इकोनॉमी जो है वो कैसा इकोनॉमी है, किस तरह का इकोनॉमी है? ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, डिफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस. तो क्लोज इकोनॉमी जो है बंदा हुआ जो इकोनॉमी है वो कैसे है? सो neither export nor import takes place. A closed economy is one that does not swap their trading with outside economies. और ये जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि कोई भी इंपोर्ट नहीं होगा, कोई भी एक्सपोर्ट जो है कंट्री से आपको नहीं निकलेगा. सो दैट इज द क्लोज्ड इकोनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसमें से जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है? छुपी हुई बेरोजगारी इसको कहते हैं. वो किसका पार्ट है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, cyclical unemployment, and the correct answer is under unemployment. Is also regarded as disguised unemployment. It results when a person contributes to less production than what or he or she is capable. मतलब ये मोस्टली क्या है आपको ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलेगा डिस्गाइज्ड, और वो भी एग्रीकल्चर में आपको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? तो इसमें से जो है कमर्शियल क्रॉप जो है वो कौन सा है? मस्टर्ड, टोबैको, जूट, all of the above, and the correct answer is all of the above. So coffee, cotton, jute, sugarcane, tea, tobacco, groundnut, rapeseed, mustard and soybean are some of the major commercial crops of India. So these are the commercial crops of India. Next question is depreciation means. Depreciation का मतलब क्या होता है? Closure of a plant due to lockout, closure of a plant due to labor travel, loss of equipment over time due to wear and tear, destruction of a plant in a fire accident. And the correct answer is loss of equipment over time ड्यू टू वियर एंड टीयर. जो भी चीज़ आप खरीदते हो और एक साल बाद जो इसकी वैल्यू कम हो जाती है वो किसी वजह से, उसी को कहते हैं डिप्रेशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी? जो है वो कौन बनाता है? जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमने देखा जो फॉर्मुलेट करता है वो RBI,
तो फिजिकल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट्स द फिजिकल पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विच रिप्लेस द गेट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम. तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको जो रिप्लेस करने वाला ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो कब से जो है इफेक्ट में आया? 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1995, 1 अप्रैल 1995, 1 मई 1995. एंड द करेक्ट आंसर इज 1 जनवरी 1995. तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड रिप्लेस्ड बाय WTO इन 1995 और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टू द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज. तो कितना है टोटल? 16, 16.5, 17.5, 18. एंड द करेक्ट आंसर इज 17.5. So India with 2.4% of the world surface area accounts for 17.5% of the total population. और सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कौन है? उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे पॉपुलेटेड है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, और एरिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन है? दैट इज राजस्थान इज द largest state in terms of area. So these are the important questions which we have discussed in this session. Hope you guys have understood each and everything. So if you understood each and everything, do like and share these videos. And stay tuned for further update and further important videos. All the best. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.